स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस। डिजीज़ ऑफ बोन शुरू हो रहा है। डिजीज़ ऑफ बोन में सबसे पहला है ऑस्टियोमाइलाइटिस। 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन जो बोन में हो जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। 2 तरीके का होता है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। तो एक्यूट में क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में चाइल्डहुड है, लोग जनरल कंडीशन है, अंडर इन द माइल्ड न्यूट्रिशन, फोकस ऑफ सेप्सिस इन बॉडी, ब्लड बोन इन्फेक्शन टेक्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम, ट्रॉमा, ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, पैथोलॉजी इन्फेक्शन ब्लड बोन and affect the metaphylaces and leads to an abscess which tend to spread towards the surface and medullary cavity. When the infective porosis is extended toward the surface through the cortical thickness by the Herbaceous canal, it causes the thrombosis of vessels, so that by the time infection is supposed, it has caused some cortical necrosis due to the infection. Subperiosteal extension of the infection produces an inflammatory exudate which becomes frank pus in 24 to 48 hours and with the tract subperisternally, but both longitudinal and circumference, thereby shipping by the peristonium and interrupting the blood vessel. The inflammatory exudate also travel along the medullary cavity, crushing arterial and venous of the obstruction. The combined effect of the vascular obstruction, pressure of the exudate and stripping of the peristonium with the obstruction to its vessel is infraction of the bone in the squastrum. ठीक है, around the squastrum the elevated peristonium lays down new bone which is also known as involvum. When the pus broken out through the periosteum through the sinus in the involvement called as cloaca, the presence of dead infected bones as squastrum causes the persistence and the chronicity of the disease by the chronic osteomyelitis. Next है blood borne infection हुआ, metaphylaces होगा, lead to abscess करेगा, spread toward the surface of medullary cavity, thrombosis हो जाएगा, vessel का infection in subperitoneal region, produce करेगा inflammatory exudate, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक frank pus होगा और अलाउ करेगा also travel along the medullary cavity causing anterior and venous obstruction, squastrum involvement और cloaca. कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके? स्पेटिसीमिया एंड पाइनीमिया, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियम टैक्सीमिया, डक्टल हैंड्स इन द बोन लेंथ ऑफ द अफेक्टिंग द एपिफाइसिस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, पेन होगा, मूवमेंट अफेक्टेड होगा, ठीक है, पस, टायर्डनेस, हेडेक एंड टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगी। अगर हम साइन की बात करें तो इसमें साइन क्या क्या होंगे? तो टॉक्सिक लेवल, इरिटेबिलिटी एंड द नर्वस पेशेंट, हाइपरपेरेक्सिया विद द टैकीकार्डिया, इंट्रिंसिक लोकल टेंडरनेस विद स्वेलिंग एंड रेडनेस। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, एक्सरे होता है। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट, एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस, एक्यूट रेमेटेड आर्थराइटिस, हीमो आर्थराइटिस सर्वे होगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इंजेक्शन दो, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ पूछी जाती है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो बताओ। इंजेक्शन क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 2.25 to 5 लाख यूनिट आईवी दोगे, गिवन अलॉन्ग विद द स्ट्रेप्टोमाइसिन दोगे। इन फिर नो रेस्पॉन्स इन 24 आवर्स, इंजेक्शन क्लॉक्साइक्लिन इंजेक्शन इज आईवी is started. Limb is completely immobilized in a plaster cast with a window kept to permit the regular absorption. High fluid intake if needed. IV infusion is given. As soon as culture sensitivity short is obtained, the effective antibiotics is started. Operative TT कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में फेल हो जाए तो ड्रेनेज करोगे सुपरफिशियल एब्सेसिस को, प्रोसीजर एलिवेट करेगा, लिम्ब को अप्लाई करेगा, डॉक्यूमेंट को, इंसिजन इज मेड ओवर द अफेक्टेड segment bone. After drainage of the abscesses, penicillin powder dusted over the bone and the limb is immobilized. ड्रेनेज और इंडिकेशन है कि परसिस्ट करती है सेवरल लोकल पेन को, टॉक्सीमिया को और टेंडरनेस को। इवन आफ्टर 48 आवर इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी। प्रोसीजर है एलिवेटेड होता है लिम्ब और टॉनिकोइट अप्लाइड होता है। बोन जो होती है एक्सपोज होती है बाय इंसिजन को, और स्मॉल इंसिजन जो होता है मेड करता है पेरियोस्टीनियम को। ठीक है, इसके बाद जो
चीज़ है ड्रिल करती है होल्स को मेड इन द कॉर्टेक्स और वर्क करती है टुवर्ड द मिडल ऑफ द शाफ्ट अंटिल पस इज ऑब्टेन। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है? क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस 3 तरीके का होता है। ये फॉलो करता है आपका एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस को और ब्रॉडीज एब्सिस को। इसके बाद स्क्लेरोसिस ऑस्टियो मलाइटिस को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फीचर जो होते हैं, फॉलो कॉजेज जो होते हैं, स्क्विस्ट्रम इज अ कॉज ऑफ परसिस्टेंस साइनस डिस्चार्ज विच इज फिक्स्ड टू द बोन एंड हैज़ अ स्प्राउटिंग ग्रेनुलेशन ऑन इट्स ओपनिंग, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो अगर पास्ट हिस्ट्री है एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस की तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस रिमेन क्वाइट फॉर मंथ्स बट टाइम टू टाइम ड्यू टू द एक्यूट एक्सक्रिटेशन क्या होता है, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस होता है, लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, पस डिस्चार्ज होता है, साइनस विद स्प्राउटिंग ग्रेनुलेशन, ठीक है। देयर में बी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डिस्टर्बेंस इन द बोन लेंथ एंड इफ पस डिस्चार्ज परसिस्ट ओवर द लॉन्ग पीरियड एम्ब्लियोकाइटिस में डेवलप्ड। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूँ तो ESR टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ऑस्टोलाइटिक एंड स्क्लेरोटिक एरिया आर सीन, स्पेक्ट्रम साइनोग्राफी होती है, स्पेक्ट्रम का टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप इंसिजन एंड डाइसेक्शन करवाओगे, क्या होगा उसमें, वाइडली एक्सीजन, फाइब्रेटिक मार्जिन होगी, साइनस का स्क्लेरोटॉमी एंड सेक्वेशुअल ड्रैपिंग होगी, ठीक है। थ्रू द स्कार बोन इज एक्सपोज फिल्म इन द रिमूव्ड अलॉन्ग विद द एनवेलब्रम ओवर द हैंगल वॉल्स ऑफ द कैविटी आर स्क्वायर। इफ कैविटी इज वेरी लार्ज द इट मे रिपेयर टू बी फिल्ड विथ कैंसलस बोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रोडीज एब्सिस में लोकलाइज्ड फॉर्म होता है, मेथाइसिस इन्फेक्शन को कॉज करती है, स्टैप्लोकोकस को, लो सर्कमफ्लेंसेस, सो देयर इज अ क्रोनिक बोन एब्सिस कंटेनिंग पस और जेली लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यूज सराउंडिंग बाय द स्क्लेराइटिस बोन। साइट क्या है इसकी, लोअर एंड ऑफ टिबिया है, ठीक है, अपर एंड ऑफ टिबिया है, इसके बाद लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। क्लिनिकल फीचर यूजुअली जो पेशेंट होता है 10 से 20 सालों में देखने के लिए मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंस पेन वॉज एट नाइट aggravated by the bruising, ब्रेलिंग, local swelling followed by symptoms free। next है आपका during accreditation there is local tenderness, pitting, edema and a cutaneous erythema, there may be symptomatic effusion in the neighboring joint, x-ray show a band of sclerosis surrounding central lucent area, treatment excision of abscesses and obliteration of the cavity of the calcaneus bone chips, sclerosis OM no detect। आयुर्वेद अस्थि मज्जा वितृति के प्रारंभ में रोगी को पहले स्नेहन स्वेदन देकर रक्त विस्त्रापण कराएं, इसके पश्चात दोषानुसार औषधियों का लेप स्वेदन करते हैं, विरेचन पर्यंत के उपकर्मों द्वारा चिकित्सा करें। अस्थि व मज्जा के वितृति के पच जाने पर अस्थि को काटकर पुए के साथ निकालें और तथा अस्थि को शल्य रहित करके उसका व्रण की तरह शोधन कषायों के द्वारा करें। इसके बाद रोगी को तिक्त रस प्रधान औषधियों एवं आहार का सेवन कराएं और फिर क्या करोगे, व्रण में प्रियंगु धातु की लोद्र, कटफल, निशा एवं सैंधव लवण से सिद्ध तेलों का स्थानिक प्रयोग कराएं, इससे स्रवित व्रण का रोपण हो जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा क्या है आपका, टाइप है एक बोन का, कैंसर बिगन करता है सेल के लिए और फॉर्म करता है लॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका साइट है इसकी मेटाफाइसिस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, नी में होता है जिसमें चांसेस 70% होता है, फीमर में 52% है, टिबिया में 20% है, उसके बाद है ह्यूमरस में 9% है। कॉजेज है रेडियोथेरेपी, बोन डिस्प्लेसिस, ट्रॉमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ, पेन, स्वेलिंग, फीवर, टेंडरनेस, स्प्लेट करता है लोकली और ब्लड से, और इसमें आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और पेन और जॉइंट्स भी क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो एक्सरे है, CT स्कैन है, इसके बाद MRI है, बोन बायोप्सी है, एम्प्यूटेशन देखने के लिए मिलता है, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। बोन ट्यूबरक्लोसिस एंड जॉइंट्स ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ट्रीटमेंट वगैरह 3 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन ऑफ जॉइंट क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्विंग द जॉइंट
joint or the spine is always took it 2 degree to an infection elsewhere if the body is usually in the pulmonary TB. Pathology most common site है skeletal की TB, the spine inferior start on the vertebral. उसके बाद जो है वो है inferior start in the one ventral body and spread across the disc to the involve the adjacent vertebral body where the abscess forms and track in the different planes. In long bone infection start in metaphysis while the short bone and long bone infection involve the diaphysis first. In peripheral joint जो TB involvement होता है synovial sheath को long and the cartilage को करता है. Typically tuberculosis develop करता है synovial sheath को which becomes bulky और inflammatory एंड एन इन्फेक्टेड इफ्यूजन कलेक्ट करता है साइनोवियल जॉइंट को. एंड रिजल्ट होता है प्रोसेस का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट रिजल्टिंग इन द फाइब्रोसिस एंड क्लोसिस ऑफ द एडजेसेंट सरफेस. सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ इल हेल्थ, लेस्टिट्यूड है, फीवर है, नाइट स्वेटिंग है. इसके बाद की मैं बात करूँ तो कफ, स्पुटनम, हीमोस्टैटिस, एब्डोमिनल पेन, अपसेट ड्यू टू द 1 degree पल्मोनरी और एब्डोमिनल नॉक, जॉइंट पेन है, माइल्ड पेन इनिशियली एग्रीवेटेड बाय द मूवमेंट और एट द नाइट रेस्ट टाइम नाइट क्राई करता है. जॉइंट स्टिफनेस ड्यू टू द पेन, एडेशन, मसल स्पैम्स और बोन का डिस्ट्रक्शन होता है. डिफॉर्मिटी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन. साइन है लॉस ऑफ वेट, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, एनीमिया होता है, जॉइंट मसल वेस्टेड होता है. इन नी जॉइंट साइनोवियल थिकनिंग एफ्यूजन में भी विजिबल और पाल्पेबल होता है. एक्टिव पैसिव मूवमेंट ऑफ जॉइंट इज लिमिटेड एंड पेनफुल. जॉइंट स्किन इज समवॉट वार्मर ड्यू टू द कोल्ड एब्सेस. इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो ब्लड एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है. हीमोग्लोबिन कम है तो TLC, DLC, लिम्फोटाइट, ESR डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है आपका ready on the early stage of tissue swelling and adjacent osteoporosis. As the disease progresses, marginal erosion of the cartilage. Synovial joint is seen on the both side of the joint with the destruction of articular cartilage. The joint space of the disc is narrow. ठीक है, with the destruction of articular cartilage, the space of joint disc space of disc is narrow. In children with the long standing tubercular synovial, there may be enlargement of adjacent growing epiphysis due to the chronic inflammation. Next की बात करूँ तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करोगे, फ्लूइड कल्चर सेंसिटिव टेस्ट करोगे. ऐसे पास स्पेशलाइज इसमें डेमोन्स्ट्रेट द ज़िलाइक नेल्सन स्टेनिंग ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 20,000 सेल्स, ल्यूकेम गाइनोग्राफिक इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, उसके बाद है इसमें कि आप सर्जिकल बायोप्सी करोगे. ठीक है, अब बायोप्सी ऑफ रीजनल लिम्फ नोड, बायोप्सी ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ अफेक्टेड साइड, निडल बायोप्सी. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एडिपेंट कैलोरी एंड द प्रोटीन इनटेक, FE एंड विटामिन सप्लीमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव पल्मोनरी TB इज प्रेजेंट. कीमोथेरेपी है, पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट to 2 months, एक्टिव और इंटेंसिव फेज. इंजेक्शन SM दोगे 20 to 30 mg per kg बॉडी वेट IM. इफ IN is isotonic acid hydrolyzed 5 to 6 mg per kg body weight orally at मॉर्निंग. डेली एम्प्टी स्टमक रैपर 5 के बाद की अगर बात करें तो जो रिपापाइसिन दोगे 10 mg पर kg BD ओरली डेली दोगे. थमेटेबल डॉल 15 to 25 mg पर kg ओरली दोगे. SM और पायरामिसाइड 30 to 35 mg पर kg इज यूज फॉर प्लेस ऑफ इंजेक्शन SM. ट्रीटमेंट फॉर नेक्स्ट 4 to 7 और 12th मंथ में कंटिन्यूस फेज में पैराडॉक्सिन स्पेशली गिवन टू 83. नेक्स्ट है TT इज कंटिन्यूड for at least 6 months after the sign of activity of the disease had disappeared. Local TT भी देनी पड़ेगी. ठीक है, immobilize in the position of the function with the plastic cast or the traction surgery है. इंडिकेशन है नो रेस्पॉन्स होता है थेरेपी को, प्लस फ्रैंक पस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, ऑफ सब कॉन्ड्रल जॉइंट को. उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्जरी साइनोवेस्ट्रॉमी और आर्थोडेक्सोसाइसिस इसमें करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोप्लास्टोमा. ऑस्टियोप्लास्टोमा की जो कॉमन साइट है वो आपकी है कॉमन साइट अराइज फ्रॉम द मेटाफाइसिस एपिफाइसिस एरिया इन द लॉन्ग बोन. एग्जाम्पल है फीमर, टिबिया एंड फिबुला. इट इज ऑस्टियोलाइटिक
lytic and expand of the bone with a thin cortex. Bone destruction is irregular, spread है local और blood spread. Clinical feature है age 30 to 40 years. Women are more commonly affected होती हैं. Pain, swelling, loss of movement around the pathological. Fracture होता है, physiological fracture देखने के लिए मिलता है. Radiological findings होती है expansion of bone, thinned out cortex, next है sharp line of the demarcation below the growth and the shaft, and banning osteomyelitis, show bubble appearance, complete resection of the growth and cancellous bone graft. Next है metastasis bone tumor. Metastasis bone tumor क्या होता है? टॉपिक हमारे छूट गए, हम थोड़े से वो ले रहे हैं, ठीक है. तो क्लब फुट 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है. इसमें क्या होता है? टेल्पिस इक्विलिस्ट कहते हैं. ये बर्थ डिफेक्ट होता है फुट का, ट्विस्टेड होती है फुट, शेप ऑन द पोजीशन, ठीक है. कॉजेज होता है अर्ली एमनियोसाइटिस, अंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन, अंडर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ फुट अंडर द यूट्रस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ तो डॉर्सिफ्लेक्शन फुट होता है, कॉन्वेक्स फुट, काल्फ मसल, फुट साइज स्मॉलर, एबडक्शंस होता है. अगर हमें डिफॉर्मिटीज़ की बात करें, इंक्यूबेनस डिफॉर्मिटी होता है, कैल्किनस होता है, वेरस डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है. इसके अलावा कॉस डिफॉर्मिटी, प्लानस स्प्ले और डॉर्टिकोसाइट मेथड, फ्रेंच मेथड, पोस्टीरियर मिडल और रिलीज सर्जरी देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइना बाइफाइडा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में और 10 नंबर में पूछा जाता है. तो स्पाइना बाइफाइडा क्या होता है? ये इनकम्प्लीट क्लोजिंग होती है बैकबोन की और मेम्ब्रेन अराउंड द स्पाइनल कोड. लंबोसेक्रल होती है. कॉजेज क्या होता है? फेलियर ऑफ द एनफोल्डिंग नर्व, नॉट एनिथिंग फ्लोकेट, एल्कोहल से होती है. एंटीसीमियम मेडिटेशन होते हैं. मैनुसेलियन स्पाइनल कॉल फेल टू डेवलप प्रॉपर्ली, स्मॉल गैप्स होते हैं. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, 1 out of every 1000 बर्थ ऐसी होती है. मोस्ट कॉमन इन लंबोसेक्रल रीजन, में अकर इन स्कल, मोस्टली वेल कवर्ड बाय स्किन, एसिम्प्टोमेटिक इन नेचर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर डिस्पेक्ट, मेनिंजियो मेनियोसिल, सिरेंजो मेलिनोसिल, माइलोसिल बाय स्पाइना बाइफिला ऑक्यूलेटा. स्पाइना बाइफिला ऑक्यूलेटा और मेनिंजियोसिल डज नॉट फुल्ली फॉर्म होते. मेनिंजियोसिल माइलोसिल होती है, स्प्रेसिनिज माइलोसिल होती है, मेनिंजियोसिल माइलोसिल होती है. स्पाइनल कैनाल और बैकबोन डज नॉट लूज करती है. उसके बाद सिरेंज माइलोसिल फुलफिल डिफेक्ट होती है. मायोसिल न्यूरल टिश्यू होती है. स्पाइनल एक्सपोज को क्लिनिकल फीचर है लेग वीकनेस है, पैरालिसिस और ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ है. आपका ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल है. स्किन इरिटेशन, एबनॉर्मल आई मूवमेंट है. इन्वेस्टिगेशन यूएसजी, एमनियोसेंटिस, सर्जरी, डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब फ्रैक्चर है. नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है आपका वो है ऑस्टियोमलेरिया. ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स को. प्रॉब्लम अकर ड्यू टू द बिकॉज ऑफ विटामिन डी, ठीक है. दिस कंडीशन ऑल्सो कोरिलेट विद द रिकेट्स. क्लिनिकल फीचर किसी भी एज में होता है. बोन पेन होता है, हिप पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जनरल मैलाइस, फिशर फ्रैक्चर, टेंडरनेस, इन्फेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, लो कैल्शियम, लो फॉस्फेट, रेडियोलॉजी, बोन बायोप्सी 800 to 400. अगर इसके आगे की बात करें तो जो 800 to 400 ID ओरल डोज देते हो विटामिन डी और 500 IU विटामिन डी देते हो. 1.5 ग्राम ऑफ CaC3 ओरली दोगे. कैल्सीफॉर्म 1 mg पर डेली. प्रिवेंटिव मेथड है एजुकेशन, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और वेट कॉर्टिकोसाइड्स. नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूँ तो ये डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है? डिजनरेटेड जॉइंट डिजीज़ होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज होता है. फैक्टर्स है ऑस्टियो क्लासिफिकेशंस होते हैं. फर्स्ट डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकंड डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है. कॉमन फीचर है नो नी, हिप और स्पाइन. क्लिनिकल फीचर पेन, स्टिफनेस, जॉइंट लॉकिंग, जॉइंट इंस्टेबिलिटी. इन्वेस्टिगेशन आपका रेडियोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे है, ठीक है. अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो जानुपस्ती, रासना सप्तक, योग गुगलू और अग्निकर्म इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है. NSAID मॉडर्न की बात करूँ तो NSAID दोगे, एनालिसिस इंजेक्शंस करोगे, ठीक है. नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स की मैं बात करूँ, रिडक्शन है आपका, पेशेंट एजुकेशन है, एक्सरसाइज है, टिक्स है, सर्जरी, ऑस्टियोटॉक्टोमी होता है, ऑर्थोप्लास्टी होता है, ऑर्थोडेसाइसिस होता है और एक्सिशन होता है. नेक्स्ट जो हो रहा है वो पार्थस डिसीज 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये लेग कैल्ने पार्थस डिजीज भी कहते हैं. डिसऑर्डर होता है हिप का, यंग चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलता है. 4 से
साल के बच्चों में ये देखने के लिए। पर्थ डिजीज़ लैक कैन पर्थस डिजीज़ होता है डिसऑर्डर है का यंग चिल्ड्रन में एज है 4 to 10 फैक्टर्स है। डेफिनेशन चाइल्ड हिप डिसऑर्डर इनिशिएटेड बाय डिस्ट्रक्टिव ऑफ द ब्लड फ्लो। क्लिनिकल फीचर है हिप पेन एंड हिप नी पेन। उसके बाद एट्रोपी, इन्फ्लेमेशन है, ट्रेंडलिंग है, ट्रस्ट पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन एक्सरे लेटरल फ्रेगमेंटेड फीमोरल हेडेड ट्रैक्शन ट्रीटमेंट है ट्रैक्शन ऑर्थोरेटिक सर्जरी ब्रेसेस फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है उइंस सार्कोमा और ट्यूमर। उइंस ट्यूमर क्या होता है राइजिंग बाय द एंडोथेलियम मैरो ऑफ द डाइफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, स्प्रेड होता है लिम्फेटिक और ब्लड स्ट्रीम से। एज जनरली 20 ईयर्स होती है। ठीक है, मे बी हिस्ट्री टू द ट्रॉमा। लोकल पेन होता है, फेब्राइल अटैक होता है, ल्यूकोसाइटिस पेन इज सीवियर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में अकर इन वर्टिब्रल कॉलम में अकर रूट पेन ऑफ पैरालिसिस। नेक्स्ट है कॉजेज ट्रॉमा ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोनियल क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सरे करते हैं हम इसका ऑन रेयर अपीयरेंस करते हैं। ट्रीटमेंट में डिप रेडियो थेरेपी एंड एम्पुटेशन हो सकता है, सर्जिकल रिसेक्शन होता है, लोकल रेडियोथेरेपी, सिस्टमेटिक कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है आपका मेटासिस बोन ट्यूमर। क्या होता है स्प्रेड करता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ब्लड बोन स्प्रेड होता है, यूजुअली साइट होता है डॉर्सल और लंबर स्पाइन होता है, पेल्विक रिबेज होता है, स्कल प्रॉक्सिमल होता है, पेल्विस रिबेज स्कल प्रॉक्सिमल फीमर होता है। डायग्नोसिस लोकल पेन टेंडरनेस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो सीरियस एसिड फॉस्फेट इज इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। पैल्पेट रेटियो पैथोलॉजी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है डिजीज़ ऑफ स्पाइन। स्पाइन के कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, तो स्पाइन की डिजीज़ देखो, पहला है पॉट्स डिजीज़ या टीबी ऑफ स्पाइन। तो इसमें क्या क्या आएगा कि स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस कॉमनेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द टीबी है। ठीक है, स्प्रेड करती है हेमाटोजीनस रूट के लिए। फैक्टर्स है आपके वैरायटी सेंट्रल और मेटाफाइसियल होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है मेनली सेंट्रल में क्या करता है, मेनली अफेक्ट करता है बॉडी को बाय वर्टिब्रे और ग्रेजुअली बोन बिकम सॉफ्ट लीड टू द डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन। नेक्स्ट है मेटाफाइसियल जो इन्वॉल्व करता है एपिफाइसिस को, ब्लड सप्लाई लोअर हाफ ऑफ द फर्स्ट वेंट्रल अपर एंड द फर्स्ट वर्टिब्रे। पैथोलॉजी होती है टीबी सेटल करता है, कॉज टीबी एंटेराइटिस को फॉलिकल डेवलप करता है, नोड्यूलर साइज इंक्रीज होता है, स्पाइनल एंगुलर डिफॉर्मिटी होती है। क्लिनिकल फीचर में पेन एट साइट होता है, स्टिफनेस स्वेलिंग एटीट्यूड टेंडरनेस वीकनेस कॉइन टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे MRI CT स्कैन। ठीक है, इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एंटी ट्यूबरल ड्रग होता है और आपका स्पाइसिका होता है ड्रेनेज। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका है एनकाइलाइसिस स्पॉन्डिलोलाइटिस। इसमें क्या होता है chronic progressive inflammatory disease होती है associated with HCA B27 जीन। टाइप्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू में फाइब्रस एनक्लाइसिस बोनी एनक्लाइसिस। फाइब्रस एनक्लाइसिस में आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होता है, फाइब्रोसिस अकर होता है, जॉइंट लिमिट होती है। बोनी में मेजर डैमेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, नो मूवमेंट पॉसिबल होती है जॉइंट के लिए। फॉल्स एनक्लाइसिस में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर आर्टिकुलेशन लेशन होता है, जॉइंट लिमिट में होता है और नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। पैथोलॉजी की बात करूँ तो इनिशियल इन्फ्लेमेशन जॉइंट का है, साइनोवियल आर्थराइटिस, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, सेरोलॉजिकल जॉइंट मेम्ब्रेनियम स्टर्नम। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेलाइज है, फैटिक है, स्टिफनेस है, फ्लैशबैक्स है, टेंडरनेस है। ट्रीटमेंट की बात करें जनरल मेजर है, कंजर्वेटिव थेरेपी है, सर्जरी। जनरल मेजर पेशेंट फैमिली एजुकेशन, अवॉइड स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। कंजर्वेटिव थेरेपी रेस्ट, रेडियोथेरेपी। सर्जरी की मैं बात करूँ तो स्पाइनल ऑस्टियोमेटिक, हिप एनक्लाइसिस, नी रिप्लेसमेंट। डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, इंटरवर्टल स्लिप्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं, हार्निएटेड डिस्क, स्पाइनल डिस्क हार्निएशन। कंडीशन होती है रिफर करती है प्रॉब्लम विद द रबरी डिस्क बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड। कॉजेस क्या होता है एक्सटर्नल ट्रॉमा, वर्कर पोर्टल ट्रैचर्स, इंटरनल ओवरवेट, थिन बॉडी, हाइपर फंक्शंस ऑफ द बैकबोन, फिजिकल इलनेस, स्वेलिंग, डिस्क डिजेनरेट। टाइप होता है पोस्टुलेटर और सेंट्रल। फीचर्स होता है नॉट गिवन। ठीक है, फीचर्स
जो हैं वो लो फीचर्स जो हैं वो लो बैक पेन होता है, पेन रेडिएट्स होता है, टेंडरनेस करता है, फ्लेक्शन रेस्ट्रिक्टेड होता है, पॉजिटिव SLR टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन रेडियोग्राफी होता है, एक्सरे होता है, CT स्कैन, MRI। ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो स्पाइनल जैकेट, हॉट फॉर्मेंटेशन, एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार कटिबस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती, त्रिशंगुग्लू, निर्गुंडी लेप लगाते हैं और आसना सब तक कषाय देते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें CCI है, क्रैनियो सेरेब्रल इंजरी, सेरेब्रल कंट्यूशन, सबएक्रोनाइड हेमरेज और हेड इंजरी से ये हो जाता है। ठीक है, सेरेब्रल कंट्यूशन क्या होता है, स्कैटर्ड एरिया होता है, ब्लीडिंग का, सर्विस में होता है बोन ब्रेन। फैक्टर्स में बात करें क्लिनिकल फीचर्स की तो हेडेक है, कन्फ्यूजन, स्लीपनेस, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, टिटीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, ग्लास ग्लो कोमा स्केल की मैं बात करूँ तो इसमें आई ओपन होती है, बेस्ट वर्टिब्रल रेस्पॉन्स होता है, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स होता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ट्रीटमेंट होता है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करेंगे, हाइपरन्यूट्रिया और हाइपरकेफिया का ट्रीटमेंट करेंगे। ग्लास ग्लोकोमा स्केल आई ओपन होती है, स्पॉन्टेनियस 4, टू स्पीच 3, टू पेन 2 और नन 0 1, बेस्ट वर्नेबल रेस्पॉन्स ओरिएंटेड 0 5, कन्फ्यूजन 0 4, इनअप्रोप्रिएट 0 3, incompressible around sound 0 2, severe head injury 3 to 8, mild head injury 13 to 15, moderate head injury 9 to 12 and less than 7 being coma। next है best motor response vertebral command 6 होता है, localized pain जो होता है वो 5 होता है, विड्रॉल होती है 4, फ्लैक्स होती है 3, एक्सटेंशन होती है 3। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक्सरे की, मैं CT स्कैन की और इलेक्ट्रॉइड स्टडी और ब्लड ऑपरेशन करते हैं, गैप करते हैं। ठीक है, ग्रुप का ट्रीटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट एयरवे देंगे, जनरल असेसमेंट करेंगे, केयर ऑफ अनकॉन्शियस ड्रग, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप कैवेनेक्टोमी करोगे, ग्रेनियल फ्लैप करोगे, क्लॉट एवेल्युएटेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है? हेमरेज क्या होता है? हेमरेज एक एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल, सबएक्रोनाइड इनमें होता है। एक्स्ट्राड्यूरल कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस बिटवीन द ड्यूरामेटल एंड द स्कल। फैक्टर्स हैं आपका टेम्पोरल और पैराइटल रीजन होता है। कॉजेज होता है इंजरी टू द ड्यूरल वेनस मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फीचर्स है हिस्ट्री ऑफ ब्लोड और द फाइल्ड इंटरवल, कन्फ्यूजन, इरेटेबिलिटी, हचिसोनियन प्यूपिल, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, स्क्रल, CT स्कैन, इमीडिएट क्रैनियोस्कोपी, इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा। नेक्स्ट की मैं बात करूँ सब ड्यूरल हेमरेज, कलेक्शंस ऑफ द बोन बिटवीन ब्रेन एंड ड्यूरा, सब ड्यूरल स्पेस। कॉज की बात करूँ तो बाद अगर मैं साइट की बात करूँ तो कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन है, फीचर्स अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्शन, बाइलेटरल हेडेक, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो CT स्कैन है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट, जनरल एनेस्थीसिया, क्रैनियोटोमा। सब एक्रोनाइड हेमरेज, कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन सब एक्रोनाइड स्पेसेस। फैक्टर्स कॉजेज हैं आपके इंट्राक्रेनियल एनोसोमा, हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर, एंटीकोगुलेंट। फीचर्स है हेडेक, वॉमिटिंग, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, पेटोसिस, डायलेटेड पीपल। इन्वेस्टिगेशन की मैं अगर बात करूं तो आपका है लंबर पंक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका शोन ब्लड स्टेन, CSF, CT स्कैन। ट्रीटमेंट की बात करूँ क्रेनियोस्टिल लाइगेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट है हेड इंजरी, क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा है, ब्रेन डिस्फंक्शन है कॉज बाय द आउटसाइड फोर्स है। फैक्टर्स इंजरी टू द स्काल्प, इंजरी टू द स्कल, ब्रेन इंजरी, इंजरी टू द स्काल्प है, स्काल्प रेडिएशन करते हैं, लैक्रेशन करते हैं। एग्जामिनेशन हेमरेज होता है, स्काल्प रिच वस्कुलर सप्लाई होता है, इंजरी टू स्कल कॉमन इन चिल्ड्रन, सिंगल और मल्टीपल, एंटीरियर और मिडिल और ड्यूरल वेनस साइनसिस होता है। ठीक है, टाइप्स की मैं बात करूँ तो लीनियर फ्रैक्चर, सिंपल डिप्रेस्ड स्कल बेस। लीनियर फ्रैक्चर में कंप्रेशन ऑफ स्फेयर, स्कल डिस्टॉर्शन, लीनियर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज अराइजेस। सिंपल फ्रैक्चर में ब्लंट ट्रॉमा, रेडिएट टू द स्कल, नो फ्रैक्चर, एक्सेलरेशन ऑफ द 1 degree ब्रेन इंजरी, डिप्रेस्ड शार्प ट्रॉमा, inner part of affected fragment, depressed cortical damage, skull base divided into anterior, middle and posterior cranial fossa. Next है anterior cranial fossa fracture, CSF, rhinorrhea, blindness, sub congenital hemorrhage, dilated pupil, anosmia, middle cranial fossa fracture, fracture of maxillary, abducted facial nerve palsy, posterior cranial fossa fracture, swelling in Napa Wattle sign. Next है traumatic brain injury, 2 types of injury, 1 degree and 2 degree, direct impact injury, acceleration injury, shockwave
इंजरी कॉज करती है ब्रेन डिस्टॉर्शन को, ब्रेन मोबिलिटी को, डीप डिक्लेरेशन इंजरी को, एक्सेलेशन इंजरी को, सेरिब्रल डैमेज को, कॉप इंजरी को और कोमिंग को। 1 डिग्री है डिफ्यूज न्यूरल नल डैमेज, कंट्यूशन है, शेयरिंग है, लैक्रेशन है। नेक्स्ट है 2 डिग्री ब्रेन स्वेलिंग है, हेमेटोरिया इन्फेक्शन। अदर फीचर्स की अगर बात करूँ तो CSF को चेक करेंगे, लीक्स करेगा, ब्लड कलेक्शन करेंगे, बेटल साइन, पांडा साइन और हेमाटोमा और स्काल्प देखेंगे। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के जो डिजीज़ हैं वो क्या है, कंजेनाइटल एनोमलीज में है एमेजिया। ये कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एब्सेस है ब्रेस्ट का, जिसमें क्या होता है, कंजेनाइटल एब्सेस ब्रेस्ट में अक्यूर वन और बोथ द साइड्स, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीआइजेरिया कॉल्ड एज द एक्सेसरी ब्रेस्ट रिकॉर्डेड इन द एक्सिला, ग्राउंड एंड बुटक एंड थाई, एथिलिया एब्सेंस ऑफ निपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट एब्सेसेस, 2, 3, 5, 10, 15 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसे पाइलोरिक मास्टाइटिस या एक्यूट बैक्टीरियल मास्टाइटिस भी कहा जाता है। 15, 5, 3। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट है स्क्लेरो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोऑरस होते हैं, कोकस होती है, कॉमन ऑरस होती है। इटियोपैथोजेनिस मोस्टली कॉमन एनकाउंटर्ड और फाउंड ड्यूरिंग द लैक्रेशन पीरियड, कैन बी ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ हेमाटोमा, नॉन लैक्टेशन, ब्रेस्ट एब्सेस, प्रेसिपिटेशन फैक्टर, क्रैक्ड ऑफ फिशर निपल, रिट्रैक्टेड निपल, ओरल कैविटी इन्फेक्शन इन द इन्फेंट्स। If both the condition of first and the second of the common organism or infection enter the breast, either from the fissure in the nipple or through the milk due to the cause of infection, in untreated cases it progresses to suppression, result in the mammary abscess, non-lactation BA, subauricular abscesses. It occurs in the patient with duct dilatation and periductal metastasis. When such an abscess rupture, result in the mammary fistula. Causative agent जो है वो aerobic bacteria, types of mammary abscesses, subellular abscess, intermammary abscesses और रेट्रो मेमोरी एब्सेसेस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें है इन cellulitis is a severe pain in the breast due to the spreading inflammation, acute inflammation of the breast is tender and warm to touch. In abscess state there is a high grade fever with the chills, rigor and soft cystic swelling, fluctuation test positive. Untreated cases abscess may rupture through the skin resulting in the necrosis of the skin of the breast, ulceration and discharge. Next जो बात है वो है आपका इन डीप सीटेड एब्सेसिव फ्लक्चुएशन इन लेट नाइट, साइन ऑफ द डिफिकल्ट टू एलेक्ट। नेक्स्ट है हैंस इट इज थ्रॉबिंग पेन फीवर, इमीडिएट इंसीजन इज मैंडेटरी। ठीक है, इसके बाद आपका इंसीजन 1 है क्यूटेनियस एलुरल इंसीजन, उसके बाद फॉर द सब एरुलर एब्सेस। इंसीजन 2 रेडियल इंसीजन, मोस्टली यूज फॉर द ब्लड ट्यूमर फॉर द ड्रेनेज ऑफ पस। इंसीजन 3 ग्लैरेडेड थ्रोम्बोटिक मेमोरी इसके बाद जो टीटी इंसीजन और थर्ड है वो ग्लैरेडेड थॉमसिस सब मेमोरी और रेट्रो मेमोरी इंसीजन है। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस, ब्रेस्ट फीडिंग, स्ट्रोप्सन ऑफ साइड इफेक्ट, सपोर्ट टू द ब्रेस्ट एंड द लोकल हेल्प इन द रिलीफ ऑफ पेन। एंटीबायोटिक्स दोगे क्लैरिक्सिन 500 mg 6 hourly फॉर 7 to 10 days। NSAIDs दोगे फॉर नॉन लैक्टेट, ibuprofen दोगे 400 mg for non-lactic breast, gold metabudesonol 100 mg TDS 5 to 7 days। ट्रीटमेंट है इंट्रामेमरी एब्सेस का। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडियल इंसीजन अफेक्ट ओवर affected segment, incision passes through the skin and superficial fascia along artery fossa with a closed end point in the inserted forcefully into the abscess cavity, then its jaw is opened when the withdrawal from the cavity causing wide opening of the abscess cavity. Finally a finger is introduced into the cavity. All the loculi septa are disrupted if unless the abscess cavity is very big in size and situated at very highest or the lowest part of the breast. A counter incision should be made at the most dependent part of the breast and the correlation drain in the inserted dressing is carried out aseptically. Drainage removed from 48 hours and antibiotic therapy is continued for 7 to 10 days. Gynecomastia ये आइडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, आइडियोपैथिक का, हेट्रोफिलिक का। ठीक है, इसके बाद आपका
मेल ब्रेस्ट में भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल है, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रेस्ट एनलार्ज करता है प्यूबर्टी को, समटाइम प्रेजेंट एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल डेवलप्ड फीमेल ऑर्गन subject to the deformity are often excited. Hormonal causes testosterone therapy for CA prostate occur करता है result of stratoma of the testes और associate करता है leprosy को associated with the liver failure, metabolized estrogen, cleans infiltrant syndrome. Next है आपका TT mastectomy with the presentation of the nipple areola, acute subacute inflammation of the breast, mastitis of infant, mastitis of puberty, mastitis of mumps, metastasis from the local irritation. एंटीबायोमा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंड्यूस करता है ट्यूमर को एंटीबायोमा। इन सच केसेस एंटीबायोटिक्स इज गिवन इन द absence frequently becomes stellate. A large brownie odematous remains takes a week to the resolve. Sometimes abscess cavity or may fibrous and result in the film to the hard lump in the breast. The hard lump can be confused for malignancy. एक्सीशन करते हैं। फाइलॉइड ट्यूमर क्या होता है, डायरेक्टली कोरिलेट करता है, ये भी हुआ नहीं है टॉपिक। फाइलॉइड ट्यूमर तो छोटा सा ही है, ठीक है, कर लो। 2 में 3 में या 5 में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोरिलेट करता है बेनिंजिंग ट्यूमर को, ब्रेस्ट की ग्रो करता है, रैपिडली अटेन करता है ग्रेट साइज। बेनिंग 80% होता है, बॉर्डर लाइन है 15%। फैक्टर्स क्लिनिकल पिक्चर मोर कॉमन 30 to 50 years, यूजुअली यूनिलेटरल बेस, एलिवेटेड सर्फेस स्वेलिंग, सॉफ्ट नॉन टेंडर स्किन, स्ट्रेट डायलेटेड वेन, ट्यूमर इज वॉर्मर। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, एंटीबायोटिक्स दोगे आप, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटीपायरेटिक, नॉन लैक्टेशन, ब्रेस्ट सेप्सिस, पोजीशन स्पाइन का और सुपाइन है, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, प्रिपरेशन, पेंटिंग एंड ड्राफ्टिंग करोगे। इंसिजन है रेडियल डायरेक्शन अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, इज मेड ओवर स्वेलिंग। प्रोसीजर है पायोजेनिक एब्सिस का, अनदर इंसिजन मेड करता है डिपेंडेंट का पोजीशन, कॉरुगेटेड रबर ड्रेन करता है, कैविटी में भी पैक्ड विद रोलर, गिव स्टॉप यूजिंग हेमरेज फ्रॉम द इट्स वॉल एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा। क्लोजर है, डज नॉट क्लोज इंसिजन इफ इन्फेक्शन इज वेरी सीवियर। कॉम्प्लिकेशन एंटीबायोमा फॉर्मेशन, स्किन नेक्रोसिस होती है, साइनस करते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन करता है। ब्रेस्ट ट्यूमर, फाइब्रोएडोमा, ये कॉमन बेनिंग ट्यूमर है, ब्रेस्ट डेवलप करती है बिटवीन द 15 to 30 ईयर ऑफ एज को, ठीक है। इसके बाद सिंगल लॉब्यूलर अंडरगो करता है हाइपरप्लेसिया को, एंड कवर बाय वेल डिफरेंशिएट कैप्सूल। 2 तरीके का होता है, पेरीमैकुलर और इंट्रामैकुलर फॉलिकुलर, ठीक है। फाइब्रोडोमा, पेरीमैकुलर जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड टाइप यूजुअली सीन इन गर्ल्स बिटवीन 15 to 30 years एंड सॉफ्ट टाइप अकर इन द वुमेन बट द एज ऑफ 30 to 50 years। इंट्राकैनुलरी फिस्टुला मैनिफेस्ट करता है एज स्लो ग्रोइंग पेनलेस सॉलिटरी लंप इन द ब्रेस्ट इन ऑन एग्जामिनेशन, फ्रीली मोबाइल लंप, hence called breastitis. Mouth management, excision and biopsy confirm the diagnosis, generally found in the lower part of the breast. Submammary incision in the ideal incision in case of bigger and size or multiple curved incision is given. Next जो है वो galactocele है, extreme rare, used usually present in suballular or single cyst, always form the lactation, ठीक है। cyst contains milk liquid and or the incipient drug, thick, and in long standing cases its wall tends to calcified. next जो है वो आपका टॉपिक है डक्ट पैपिलोमा। ये बेनिंग सिंगल वॉर्ड करता है lactiferous duct को, called duct papilloma. Clinical feature middle 30 to 50 years women, blood discharge from nipple, small type of swelling. Investigation है ductogram, microduct। आयुर्वेद चिकित्सा में शिव गुटिका दोगे, अशोका रिष्ट दोगे, टैबलेट गार्ड गोल्ड दोगे, डाइजेपेन दोगे, ठीक है। सी ऑफ ब्रेस्ट, इस क्या होता है, कॉमन इन सी ऑफ ब्रेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉमन इन वुमेन अबव द एज ऑफ 50 years, फैमिलियर ससेप्टेबिलिटी इज अननोन,
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, सस्टेबिलिटी इज नॉन सिंगल और द न्यूलर पेरेंट्स वुमेन कैरी द ग्रेस्ट ऑफ सफरिंग ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा कॉमनली यूनिलेटरल क्लासिफिकेशन है। दो तरीके, डक्टर और इन्वेसिव। नहीं, डक्टर और लोब्यूलर। डक्टर्स में इन सीटू और इन एक्स सीटू होता है। डक्टल क्या होता है, परफेशन ऑफ द मैलिग्नेंट ब्रेस्ट एपिफाइसियल थेल epiphyseal cell is confined to the duct system and does not involve surrounding tissue. Invasive intraductal CA invades the basement membrane and has the ability to infiltrate into the surrounding tissue. Next, a lobular CA of breast. It does not form a papillary mass and it is by the chance during the histopathological examination may be of in situ or invasive type spread of the local spread होता है, blood spread से हो जाता है, इसके बाद मेटास्टेसिस से हो जाता है। ठीक है। डक्टल सीए इन सितु में प्रोलिफिकेटेड है। मैलिग्नेंट ब्रेस्ट एपिथेलियम के सेल कन्फाइंड करती है डक्ट सिस्टम को एंड डज नॉट इन्वॉल्व द सराउंडिंग टिश्यू। इन्वेसिव इंट्राडक्टल सीए क्या होता है, इन्वॉल्व करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को एंड हैज द एबिलिटी टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। लोब्यूलर सीए ऑफ ब्रेस्ट होता है, डज नॉट फॉर्म अ पाल्पेबल मास होता है, डायग्नोसिस डज नॉट फॉर्म अ पाल्पेबल मास, डायग्नोसिस बाय चांस ड्यूरिंग द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मे बी ऑफ इन सितु और इन्वेसिव टाइप स्प्रेड है। सीए ब्रेस्ट का लोकल स्प्रेड करता है। इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेशन into the surrounding tissue. Infiltration is common in chirosis type lesions have a irregular margin and causes region of the breast tissue. Next one है आपका lymphatic drainage में क्या होता है, जो कार्सिनोमा होता है वो सेल में along with the lumps and retain the regional lymph nodes. Fistula involve the pectoralis of the axillary lymph node and followed by the other group of axillary region. In this disease process, there is a blockage of the lymph in odometas of the skin shows pinpoints and the depression where the hair follicle are attached to the subcutaneous tissue. This make the region of the peel of the orange and hence called the peared orange. Next जो topic है वो clinical feature है. Incidence common age about after 40 years but occur at any age after puberty. तो इसके बाद जो है वो आपका आ रहा है क्लिनिकल फीचर्स में। इंसिडेंस कॉमन एज आफ्टर 40 ईयर्स। इनिशियली पेशेंट प्रेजेंट द पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट जनरली इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट एज एनलार्जमेंट कॉजेज डिस्कम्फर्ट इन द एडवांसमेंट स्टेज पेन में बी बिकम एसोसिएटेड फीचर। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा आर पेनफुल डिस्चार्ज थ्रू द निपल्स में बी सीन रिट्रैक्शन ऑफ निपल मेटास्टासिस ऑफ बैग एक चेस्ट पेन डायसिनिया जॉन्डिस एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एन एग्जामिनेशन निपल में बी रेज्ड और रिट्रैक्टेड पील और may be an important feature. Breast CA is hard irregular. Axillary lymph node may be enlarged to the hard tines. Fixation of the deferred tissue. Opposite breast has been treated for. Examine the presence of distinct स्टेसिस कंपलसरी। स्टेजिंग है T1 T2 T3 T4। तो इसमें क्या होता है, T1 में ट्यूमर स्टेज 2 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, नो स्किन फिक्सेशन। T2 में ट्यूमर साइज 2.5 सेंटीमीटर, ग्रेटर लेसर देन 5 सेंटीमीटर, स्किन टीथ और डिम्पल, नो पेक्टोरल फिक्सेशन। T3 ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर बट लेसर देन 10 सेंटीमीटर, स्किन इन्फ्लेमेटेड और अल्सरेशन, पेक्टोरल फिक्सेशन। ट्यूमर साइज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, स्किन इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन, स्किन ऑडेमा, पियर्ड ऑरेंज, अटैचमेंट टू द पेक्टोरल मसल और चेस्ट। N0 नो पाल्पेशन एक्सिलरी लिम्फ नोड। N1 क्लिनिकली पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड। N2 क्लिनिकली पाल्पेबल फिक्स्ड लिम्फ नोड। N3 सुप्रा और इंफ्राक्लैविकुलर नोड्स कंसीडर टू द सर्टेन मेटास्टेसिस ऑडेमा ऑफन। M0 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस। M1 क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस इंक्लूड द स्किन इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड द ब्रेस्ट कॉन्ट्रालेटरल नोड्स। स्टेज 1 T1 N0 M0 T2 स्टेज 2 T1 T2 N1 N0 स्टेज 3 T3 N2 M0 T4 N3 N4 M0 स्टेज 4 में T4 N3 M1 ट्रीटमेंट वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इट हैज़ ओन दे इन्वॉल्व सेगमेंटल रिपेयर सेशन सिंपल मसल मैसेक्टोमी रेडियल मास्टेक्टोमी टू इंक्लूड द इंटरनल मेमोरी एंड और द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड ईच ऑफ मे बी सप्लीमेंट ऑफ द रेडियोथेरेपी और
इसके बाद की अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ओनली इन्वॉल्व सेगमेंटल रिसेप्शन, सिंपल मसल मैसेक्टोमी, रेडियल मास्टेक्टोमी टू इंक्लूड द इंटरनल मेमोरी एंड और द supraclavicular lymph gland. Each of these may be supplemented by the radiotherapy or chemotherapy. Injection to SDS. TT of the stage 1 and 2 Halset radical mastectomy is the most popular operation. Alternative methods are local mastectomy combined with radiotherapy. In stage 2, local mastectomy to the radiotherapy. Next is in stage 4, TT is directed toward the palliation with the surgery, radiotherapy, hormone therapy, endocrine surgery, administration of the cytotoxic drug or by a combination of these methods. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ रहा है आपका पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निपल। ये क्या होता है? क्लिनिकल फीचर लम्प्स इन द ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप का नहीं, ये सी में आता है पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निपल। किस में आता है? आपका कार्सिनोमा, मतलब जो अभी हमने पढ़े थे, हाँ, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट एब्सिस में। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन देखोगे ब्रेस्ट की तो क्या है कि पोजीशन है सेकंड एंड सिक्स्थ वर्टिकली निप्पल होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एरोला ब्लैक कलर की होती हैं, क्वाड्रेंट राइट एंड लेफ्ट होता है, कंजेनाइटल डिजीज़ होता है, एमेजिया ब्रेस्ट एब्सिस होता है, पॉली एमेजिया एसेसरी ब्रेस्ट एसेसरीज होती हैं, थलिया एब्सिस ऑफ निप्पल, सुपीरियर न्यूबरिंग एसेसरी निप्पल्स, माइक्रोमेशिया स्मॉल ब्रेस्ट, स्तन शिरा विवर्ता, प्राप्यम सूतानाम गर्भिणी सुदग्धम वितरती सूक्ष्म वक्तकर, ठीक है। व्रण एक्सपेक्ट उपनाह करते हैं, पातन करते हैं, मसाज करते हैं, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो डिजीज ऑफ चेस्ट का हो रहा है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाय।